today in this lecture we will discuss about domain of a function. So we had discussed about domain and codomain of a function in the last class, and this time we'll take some questions on domain also. So we know that a function can be written in the form of a function from set x to set y, where set x is the domain set of the function and set y is called codomain set of the function. Now you might know that a function is written in the form of something like f of x equals to y. Here in this representation you can say that x is the domain set of the function, and your y is actually a subset of codomain. You'll see in subsequent lectures that y is actually a subset of codomain, not the codomain itself. In this function, in this representation, y is a subset of the codomain, and this is called range of the function. This subset is called range of the function. So after completing domain and questions on it, we will move forward and look what actually range is. So in simple language you can say that domain is those values of is a set. You can say that domain is a set of values of x in f of x. Domain is a set of values of x in f of x such that the function exists for every value of x in that set. So this is one of the simplest definition you can say of domain. Domain is a set of values of x in f of x. That is, f of x is the function and we have a set of values of x, and every element or every value in that x will make sure that a function exists. So that is what a domain is. We'll see examples and we'll find what this really wants to tell when it tells that a set of values of x such that function exists for every value of x in that set. So let us take an example. There is a function f of x which is actually one, you can say, root over x minus 5, and this is a real valued function. Whatever we will study right now, all of them will be real valued functions. So if this function is to exist, अगर इस फंक्शन को एग्जिस्ट करना है तब x माइनस 5 जो है, जो रूट के अंदर है, इसको या जीरो या जीरो से बड़ा ग्रेटर इक्वल जीरो होना ही होगा. अगर x माइनस 5 लेस देन जीरो हो जाता है देन this will become a complex number or imaginary number where the value inside the square root is negative. So ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो x माइनस 5 को ग्रेटर इक्वल जीरो होना ही होगा. अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, एंड वी आर नॉट डीलिंग विद इमेजिनरी वैल्यूड फंक्शंस, वी आर ओनली डीलिंग विद रियल वैल्यूड फंक्शंस. इसलिए x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर इक्वल जीरो, एंड इफ दिस इज द केस देन x शुड बी ग्रेटर इक्वल 5. सो अगर x का सेट देखें तो x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी. ओके,
इस सेट से कोई भी एलिमेंट उठा ले और x की जगह पे पुट कर दे तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही। अगर लेट से 5 टू इन्फिनिटी है तो हम 7 उठा ले, एफ ऑफ 7, तो 7 माइनस 5 इज √2, सो √2 एग्जिस्ट्स, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर हम 4 उठाते, x की जगह पे 4 उठाते और एफ ऑफ 4 देखते तो ये होता 4 माइनस 5 विच इज़ -1 का रूट जो आयोटा होता, एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर। तो अगर इमेजिनरी नंबर है तो हमारी वैल्यूज आ गई इमेजिनरी, सो ये हो गया इमेजिनरी वैल्यूड फंक्शन। बट हमने जंक्शन लेके चला है कि ये जो भी हम अभी पढ़ेंगे ऑल विल बी रियल वैल्यूड फंक्शन, इसलिए इमेजिनरी वैल्यूड फंक्शन हो नहीं सकता, इसलिए 4 जो है हमारा डोमेन में नहीं हो सकता। एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग शोन बाय दिस सेट। This set tells that only those values of x will be taken which are greater than or equal to 5, and only then this function will be a real valued function, otherwise it will not be a real valued function. Similarly एक और एग्जाम्पल देखें, this time f of x को हम 1 अपॉन रूट x माइनस 5 कर देते हैं। इस बार दो कंडीशंस आएंगे, देखिए। So the condition 1 should be again कि x माइनस 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि x माइनस 5 स्क्वायर रूट के अंदर है और स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकती रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए। सो x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट एक और की कंडीशन है, दिस इज कंडीशन 1, दिस इज गोइंग टू बी कंडीशन 2 नाउ। कंडीशन 2 कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये फंक्शन 1/0 हो जाएगा, जो कि विल से दैट दिस विल नॉट एग्जिस्ट, द फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट इफ डिनोमिनेटर बिकम्स 0। सो डिनोमिनेटर को 0 भी नहीं होना है, तो डिनोमिनेटर को जो 0 नहीं होना है तो x माइनस 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो दीज आर द टू कंडीशंस विच शुड बी मेड साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑपरेशन करेंगे वो एंड का ऑपरेशन करेंगे, डेट इज इंटरसेक्शन का ऑपरेशन करेंगे, इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल 0 भी होना चाहिए और x माइनस 5 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वायलेट हुआ तो फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। सो कंडीशन 1 से हमें मिला x इज ग्रेटर इक्वल 5 और कंडीशन 2 है x इज नॉट इक्वल टू 5। तो इन दोनों को नंबर लाइन पे अगर रखें 5, तो कंडीशन 1 बोलता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और कंडीशन 2 बोलता है कि x 5 नहीं रह के कुछ भी रह सकता है। तो x अगर कुछ भी रह सकता है, ये बोला है x 5 नहीं रहेगा और कुछ भी रह सकता है, तो अब इन दोनों को इंटरसेक्शन ले तो बस वी सी दैट ओनली दीज एलिमेंट्स फ्रॉम 5 टू infinity आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, और 5 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि 5 इस सेट में नहीं है, दूसरे सेट में है। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट अ डोमेन इज। सो आई होप कि अब आपको एक ये तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट एक्चुअली डोमेन इज। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अंडरस्टैंडिंग डोमेन इज सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। डोमेन अंडरस्टैंड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। सो मैं अभी 2-3 क्वेश्चंस लूँगा एंड वी विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस। सो लेट अस सी दैट एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज √x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक फंक्शन है, इसका डोमेन पूछता है। सो व्हाट वी हैव सीन कि ये फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट की अंदर की वैल्यू लेस देन 0 नहीं हो सकती। मीन्स स्क्वायर रूट की अंदर की वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो अगर हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर दें देन दिस विल गिव द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो विल सी 3x प्लस 2x प्लस 6 इज ग्रेटर इक्वल 0, this gives x into x plus 3 plus 2 into x plus 3
this should be greater equal 0. This gives x plus 2 into x plus 3. This should be greater equal 0. और and now we will use the same wavy curve method, जहाँ हम x plus 2 into x plus 3 को कोई फंक्शन h of x मान लेंगे, which is similar to something g of x into l of x, और g of x और l of x की जीरोज निकालेंगे. सो द जीरो ऑफ x plus 2 इज -2 एंड जीरो ऑफ x plus 3 इज -3. उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, -2 एंड -3 एंड -2, एंड will now choose a number which is greater than the largest zero here. So the largest zero यहाँ पे 2 है, तो हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जो कि लार्जेस्ट जीरो से बड़ा हो. सो लेट अस चूज दैट नंबर टू बी 0, और हम एच ऑफ 0 निकालेंगे. तो ये आएगा 2 into 3 6, और 6 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए हम यहाँ पॉजिटिव रख देंगे. अब हम -2 को जब क्रॉस करेंगे तो x plus 2 will be in picture, and the power of x plus 2 is 1, that is an odd number. So जब हम -2 को क्रॉस करेंगे तो साइन विल चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सिमिलरली -3 को चेंज करेंगे तो x plus 3 विल बी इन पिक्चर, एंड द पावर ऑफ x plus 3 इज 1, विच इज ऑल्सो एन ऑड नंबर. इसलिए साइन विल चेंज अगेन, इन दिस टाइम साइन विल चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो सो जो हमारा इनइक्वलिटी है x plus 2 into x plus 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, इस यहाँ पे और यहाँ पे. सो व्हाट इट बिकम्स, x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू -3, वेयर 3 विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो दिस टर्म विल बिकम 0, और हमारा इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. सो दिस इज ऑल राइट, इसलिए हम 3 को इंक्लूड करेंगे, -3 को इंक्लूड करेंगे, एंड सिमिलरली -2 टू इन्फिनिटी. सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. सो दिस x, this set is domain of this function. Similarly, let us solve one more question. F of x, this time let it be 1 upon root over x square minus 5x plus 6. अगर ऐसा है तो यहाँ पे दो कंडीशंस होंगे. कंडीशन वन अगेन कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर इसे रियल वैल्यूड फंक्शन होना है तो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. और कंडीशन 2 कि इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. सो द कंडीशन 2 टेल्स दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फंक्शन कैन नॉट बी 0, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो कंडीशन 1 सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल 0. दिस गिव्स x इंटू एक्स माइनस 3 minus 2x into x minus 2x minus 3, this should be greater equal 0. This gives x minus 2 into x minus 3, this should be greater equal 0. अब हम सिंपली वेवी कर्व मेथड लगाएंगे एंड विल सी दैट द जीरोज ऑफ x minus 2 is 2 and the zeros of x minus 3 is 3, और दोनों को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे. नाउ विल चूज अ नंबर which is greater than the largest zero here. So the largest zero here is 3. So let us choose a number 4, और उस 4 की वैल्यू उस 4 को इस फंक्शन में रखेंगे. सो दिस कम्स आउट टू बी 4 minus 2 into 4 minus 3. दिस कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव नंबर. सो यहाँ पे हम सिंपली ऐसा लेट मी शो यू. एच ऑफ एक्स मान लिया हमने x minus 2 को और x minus 3 को. अब लार्जेस्ट जीरो से कोई बड़ा नंबर हमने चूज़ किया, लेट अस चूज दैट टू बी 4, और एच ऑफ 4 निकाला हमने. तो 4 minus 2 is 2 and 4 minus 3 is 1 which is 2, and this is
दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0, इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव रखा। इस बार हम 3 को जब क्रॉस करेंगे सो x माइनस 3 विल बी इन पिक्चर एंड द पावर ऑफ x माइनस 3 इज 1, जो कि ऑड नंबर है। सो पावर द साइन विल चेंज। अब फिर से जब x2 को क्रॉस किया हमने, सो x माइनस 2 विल बी इन पिक्चर एंड द पावर ऑफ x माइनस 2 इज 1 अगेन, जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए फिर से साइन विल चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर इक्वल 0। तो ग्रेटर इक्वल 0 कहाँ है, इस रेंज में और इस रेंज में। x बिलोंग्स टू, सो x बिलोंग्स टू योर नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने 2 को क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि जो हमारा इनइक्वलिटी है विच सेज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर इक्वल 0, दैट इज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर इक्वल 0। सो 2 अगर x की जगह 2 रखेंगे सो दिस will be equal to 0 and which is all right because the inequality says that this x minus 2 into x minus 3 should be greater equal 0, इसलिए 2 को इंक्लूड कर लिया हमने। सिमिलरली वी विल इंक्लूड 3 ऑल्सो। सो ये कंडीशन 1 का सेट आया। कंडीशन 2 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन विल ब्लो अप एंड वी डू नॉट वांट दैट। सो सिमिलरली यहाँ भी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 है विच शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 3 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। सो अगर x 3 होता तो 0 हो जाता, x 2 होता तो 0 हो जाता, तो x ना तो 3 होगा ना तो 2 होगा। सो अब हम इंटरसेक्शन लेंगे दोनों कंडीशंस का, क्योंकि बोथ कंडीशंस शुड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेशन होगा, एंड ऑपरेशन में इंटरसेक्शन होता है। सो लेट अस रिप्रेजेंट दीज टू सेट्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे हमने 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट करें तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2 वेयर 2 इज इंक्लूडेड एंड 3 टू इन्फिनिटी, दिस इज द फर्स्ट सेट। अब इस सेट को लेंगे हम तो 3 और 2 नहीं है, इसका मतलब कि 3 और 2 के अलावा सब कुछ है। सो दिस विल बिकम हियर ओपन सर्कल, अगेन हियर ओपन सर्कल और फिर ये। सो इफ वी सी इंटरसेक्शन जब करते हैं हम दो सेट्स का, देन वी टेक ओनली दोज वैल्यूज विच आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। सो इन दोनों सेट्स में कौन कौन से वैल्यूज प्रेजेंट है, यहाँ से लेके ये देखिए ये सारे वैल्यूज प्रेजेंट है दोनों ही सेट्स में, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक। बट 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इंटरसेक्शन सेट, क्योंकि इंटरसेक्शन सेट में इंक्लूड होने के लिए वैसे एलिमेंट्स ही इंक्लूड होते हैं जो दोनों ही सेट में हो, बट 2 इज प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द सेट्स, इसलिए 2 को हम एक्सक्लूड करेंगे। यूनियन यहाँ से यहाँ तक तो सिर्फ एक ही सेट में है, दूसरे सेट में है ही नहीं। सो दीज एलिमेंट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हेन वी डू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। तो अगला एलिमेंट कहाँ से होगा, 3 टू इन्फिनिटी, एंड अगेन 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज 3 इज प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द सेट्स। सो दिस is the final domain of this function. This is the value of x for which this function will exist. So इसे हम बोलेंगे domain of this function. So these are the very basic questions which is needed when you start domain. When you start doing domain, these are the questions which are needed. So let us move to a bit more complexity. एक क्वेश्चन हम करते हैं, लॉगरिदम ऑफ x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे विल नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग अ बिट। तो हम जानते हैं कि लॉग ए बी ये कब डिफाइंड होता है, ये कब डिफाइंड होगा, जब a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 हो और a इज ग्रेटर देन 1 हो।
दिस मीन्स कि या तो a 0 से 1 के बीच हो, एंड वन थिंग यू शुड नोट इज इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1. सो 0 से 1 के बीच हो a, या a से बड़ा हो, सॉरी 1 से बड़ा हो. दिस इज वन ऑफ द कंडीशन. दीज टू शुड बी इन और, बिकॉज a या तो 0 से 1 के बीच होगा या a ग्रेटर देन 1 होगा. ये एक कंडीशन हुआ. एंड दूसरा कंडीशन जो कि साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए वो ये है कि b शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. b शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. सो फॉर लॉगरिथम टू एग्जिस्ट a शुड बी बिटवीन 0 से 1 और ग्रेटर देन 1 बट नॉट इक्वल टू 1. एंड b शुड बी ग्रेटर देन 0. यहाँ पे b कैन बी 1 but b should be greater than 0 only. So this is the thing which we'll now take into consideration while solving this problem. तो पहले x minus 5 को लें. तो x minus 5 कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? We can see कि x minus 5 can be greater than 0 and less than 1. अब हम यहीं से इस इनइक्वालिटी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सी, अगर -5 उस साइड गया तो x विल बी ग्रेटर देन 5 और -5 उस साइड गया तो x शुड बी लेस देन 6. इसका मतलब क्या हुआ कि x शुड बी बिटवीन 5 एंड 6 और a शुड बी ग्रेटर देन 1 वाला केस देखें तो x minus 5 शुड बी ग्रेटर देन 1. दिस मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 6. सो यहाँ पे क्या हुआ कि और ऑपरेटर का यूज़ किया हमने कि या तो x 5 से 6 के बीच हो या x 6 से बड़ा हो. ओके, सो यहाँ पे हमने और का यूज किया है. तो इस केस के लिए इस कंडीशन के लिए यहाँ पे दो कंडीशंस होंगे लॉगरिथम को एग्जिस्ट करने के लिए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द सेकेंड कंडीशन वी हैव सीन अर्लियर. और दोनों कंडीशंस शुड बी मेट साइमल्टेनियसली, एक साथ होने चाहिए. इसलिए ये एंड ऑपरेटर का यूज़ किया हमने. यहाँ पे देखें कंडीशन 1 सॉल्व किया हमने. कंडीशन 1 सॉल्व जब किया, कंडीशन सॉल्व 1, दिस इज योर कंडीशन 1. तो उसमें या तो x minus 5 1 और 0 के बीच हो या x minus 5 ग्रेटर देन 1 के बीच हो. तो यहाँ पे हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे. विल यूज द ऑपरेटर और जब यूज करते हैं देन दिस कम्स आउट टू बी एन ऑपरेशन ऑफ यूनियन. सो अब हम इसका इन दोनों का यूनियन लेंगे. सो यूनियन कैसे लेंगे? हम एक नंबर लाइन बनाएंगे. विल पुट 5, विल पुट 6. दोनों सेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे. पहले 5 से 6 के बीच दोनों एक्सक्लूडेड हैं तो ओपन सर्किल. और एक दूसरा जो सेट है वो ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन 6. सो हम क्या जो यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होता है कि हम इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स उठाएंगे, इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स उठाएंगे और उनको मिला के एक नया सेट बना देंगे. सो तो यूनियन होगा तो हम क्या करेंगे? सो यूनियन विल बी x बिलोंग्स टू योर 5 to 6 यूनियन 6 to infinity. यहाँ पे हमने 6 इसे डायरेक्टली 5 to infinity क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर 5 to infinity अगर लिखते हैं हम देन 6 को भी इंक्लूड कर लिया होता हमने. अगर 5 to infinity लिखा हमने दिस मीन्स कि 6 इंक्लूडेड है, बट 6 तो इंक्लूडेड नहीं है. इसलिए हमने 5 to 6 पहले दिखाया और फिर 6 to infinity दिखाया. अगर हम डायरेक्टली 5 to infinity दिखा देते तो उसमें 6 इंक्लूड हो जाता जो कि नहीं होना चाहिए. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कंडीशन 1. कंडीशन 1 का सॉल्यूशन हमें मिल गया. अब वी विल सी द सॉल्यूशन फॉर कंडीशन 2. कंडीशन 2 क्या बोलता है कि b जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. मीन्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
शुड बी ग्रेटर देन 0। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 है तो ये होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे सिंपल वेवी कर्व मेथड हम यूज करेंगे और जीरोज ऑफ x माइनस 2 एंड x माइनस 3 2 एंड 3 होंगे। 3 से कोई बड़ा नंबर लेंगे उसको इस वैल्यू में रखेंगे। लेट अस चूज दैट नंबर टू बी 4, तो 4 माइनस 2 इज 2 एंड 4 माइनस 3 इज 1, तो 2 इंटू 1 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे। जब हम 3 को क्रॉस करेंगे तो x माइनस 3 विल बी इन पिक्चर और उसका पावर 1 है विच इज एन ऑड नंबर, सो साइन चेंज होगा। सिमिलरली यहाँ से जब 2 को क्रॉस करेंगे तो x माइनस 2 विल बी इन पिक्चर, उसका भी पावर 1 है विच इज एन ऑड नंबर, सो फिर से साइन चेंज होगा, दिस विल बिकम दिस। सो दिस इज हाउ द साइन कन्वेंशन विल लुक लाइक। अब हमें x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 रखना है, तो वी विल टेक माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। हम 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अगर 2 को इंक्लूड कर दिया हमने सो दिस विल बिकम 0, बट ये हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। सो दिस इज द सेट फॉर कंडीशन 2। और हमने पहले क्या बताया था कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 शुड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ ही सेटिस्फाई करने चाहिए। सो दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे। सो हम एक बार लेट अस राइट दीज टू सेट्स। कंडीशन 1 के लिए जो सेट बना था वो था 5 to 6, x बिलोंग्स टू 5 to 6 यूनियन 6 to इन्फिनिटी, या और कंडीशन 2 के लिए जो सेट बना था, कंडीशन 2 के लिए जो सेट बना है वो है माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। सो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। पहले कंडीशन 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट लेट अस राइट 2 3 5 एंड 6, 2 3 5 एंड 6 लिख लिया हमने। अब हम विल स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग दिस सेट्स। पहला सेट है 5 to 6, 5 to 6 एंड बियॉन्ड 6, सो दिस विल लुक लाइक दिस। सिमिलरली सेकेंड सेट है माइनस इन्फिनिटी टू 2, so minus infinity to 2 and then 3 to infinity. So now we'll take intersection of these two sets, and we know that when we take intersection of two sets then we consider only those elements which are present in both the sets. So which elements are present in both the sets? So these elements are present in both the sets. सो इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू 5, 5 पे हम ओपन ब्रैकेट रखेंगे बिकॉज 5 इज प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द सेट्स, और इंटरसेक्शन के लिए हमें दोनों ही सेट्स में चाहिए होता है। सो एज 5 इज प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द सेट्स 5 विल नॉट बी इंक्लूडेड एंड दैट्स वाई वी हैव पुट स्मॉल ब्रैकेट हियर। सो 5 to 6 अगेन ओपन ब्रैकेट because 6 is included in this set but not in this set, so we will again put small bracket, then union 6 to infinity. So this is the final solution of your question. So this is the domain of this function. So this is the domain of this function. So that's how you can do more questions on domain. Now let us move to the other question. Another question we'll solve. The question is, this is going to be a bit more complex. Sine inverse, not much difficult, but slowly we are going to look at a bit more complex questions. So this is the function and you have to find a domain of the function. Now there are two conditions here again. Now for logarithm to exist, you know that if log base a b is given, then b should be greater than 0 and a should be between 0 से 1 or greater than 1. So in this function
you have log 2 x square upon 2. So you can see that a is being satisfied already. So a is 2, so a is greater than 1, so this has already been satisfied, so we will not do anything with this, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है कि ये 2 है और ये सेटिस्फाइड है. ओके, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज. सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. सेकंड कंडीशन जो था कि दिस वाज कंडीशन 1, दिस वाज कंडीशन 2. सो सेकंड कंडीशन था कि b शुड बी ग्रेटर देन 0. दिस मीन्स कि एक्स स्क्वायर बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन 0. सो एक्स स्क्वायर बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन 0. This implies x square should be greater than 0, and x square is always greater than 0 except at x equals to 0. So x square is 0 for all values of x except x equals to 0. So the set for this would be x belongs to minus infinity to infinity minus 0, because x equals to 0, x square will become 0 at x equals to 0. So x square will be greater than 0 for minus infinity to infinity minus 0, means we are excluding 0. So we can write this function as this also, minus infinity to 0 union 0 to infinity. So this is the set for condition 1, which is for logarithmic function. Now we also know that sine inverse, let us say a, sine inverse a, if there is a function sine inverse a, then a should be less equal 1 and it should be greater equal minus 1, right? So there are two conditions here. Firstly, this x square by 2, this should be greater than 0, which we have seen. The second condition is that the value inside this bracket, that is this log base 2 x square upon 2, this should be between minus 1 and 1. And these two conditions should be satisfied simultaneously, then only our function will exist. एक ही साथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी log 2 एग्जिस्ट करेगा, और log टर्म एग्जिस्ट करेगा, और log बेस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 अगर -1 से 1 के बीच होगा तभी साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. दिस मीन्स दैट आवर log बेस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 ये 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, राइट? सो लेट अस सॉल्व दिस इनइक्वालिटी. जब बेस दूसरी साइड जाएगा then it will become x square by 2 less equal 2 to the power 1, और इधर 2 to the power minus 1. This means कि x square by 2 is less equal to greater equal 1 by 2. यहाँ से 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, so x square is less equal 4 and x square is less equal to 1. So x square हमारा 4 और 1 के बीच होना चाहिए. So let us write it as, अब हम एक एक करके दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लेते हैं. ये एग्जिस्ट करना चाहिए एक साथ. So x square should be less than 4 and x square should be greater than 1. x square 4 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए. x square should be less than equal to 4 and x square should be greater than equal to 1. So what we will write, x square minus 4 is less equal 1 and x square minus 4 less equal 0,
and x square minus 1 greater equal 0. This gives x minus 2 into x plus 2 less equal 0 and x minus 1 into x plus 1 greater equal 0. Now we'll do the same wavy curve method. We'll put the zeros of x minus 2 and x plus 2 on the number line, which are minus 2 and 2 and plus 2, minus 2 and plus 2. Then we'll choose a number greater than the largest zero. The largest zero here is 2, so let us choose a number 3. So 3 minus 2 into 3 plus 2, this comes out to be positive number. So positive, when we cross plus 2, then x minus 2 will be in picture, and the power of x minus 2 is 1, that is an odd number, so sign will change. Similarly, sign will change again when we cross minus 2, because the power of x plus 2 is 1 again. Similarly, we will do for this, we will write the zeros as minus 1 and 1. We will choose a number greater than 1, that is the largest zero. So let us choose that number to be 2. So 2 minus 1 into 2 plus 1, this is a positive number. फिर से यहाँ 1 को जब क्रॉस करेंगे, देन दिस टर्म x माइनस 1 विल बी इन पिक्चर, और x माइनस 1 का पावर 1 है एंड 1 इज ए ऑड नंबर, इसलिए साइन चेंज होगा. सिमिलरली माइनस 1 को क्रॉस करेंगे तो x प्लस 1 टर्म विल बी इन पिक्चर, और x प्लस 1 का भी पावर 1 है जो कि ऑड नंबर है, सो साइन विल अगेन चेंज. सो दिस इज हाउ वी हैव अराइव्ड. नाउ x minus 2 into x plus 2 should be less equal 0. So x belongs to negative 2 to 2. And both should be inclusive because यहाँ पे less equal 0 लगा है, और यहाँ पे x belongs to negative infinity to minus 1 union 1 to infinity. So this condition is always in AND, that is in intersection, in the condition of intersection. ये दोनों होना चाहिए, 4 से छोटा भी होना चाहिए और 1 से बड़ा भी होना चाहिए. इसलिए हमने लिखा एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 4 एंड एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1. इसीलिए यहाँ पे अभी तक हम स्टार्टिंग से ही एंड लिखते आ रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर डैट कन्फ्यूजन ना हो. इसलिए एक्स, अब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे. सो लेट अस रिप्रेजेंट दीज टू सेट्स ऑन द नंबर लाइन. हियर इट कम्स -2, -1, 1, 2. इस सेट को रिप्रेजेंट करें, दोनों इंक्लूडेड हैं इसलिए क्लोज्ड सर्कल, -2 से 2. और इस सेट को रिप्रेजेंट करें, सो -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity. So और या these will be included, actually these are included, so this will be closed bracket. सो अब यूनियन करेंगे तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, x होगा -2 to -1, और दोनों इंक्लूडेड होंगे क्योंकि -2 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, -1 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है. सो -2 to -1 यूनियन 1 to 2 बोथ इंक्लूडेड अगेन, क्योंकि 1 इज इंक्लूडेड इन बोथ द सेट्स, 2 is also included in both the sets. So this is the solution for condition 2. So we have got what? Solutions for condition 1 and condition 2. So let us write it. Condition 1 के लिए solution क्या है? x belongs to -infinity to 0 union 0 to infinity. And कंडीशन 2 के लिए क्या है? कंडीशन 2 के लिए क्या है? x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 1 to 2. So and these two conditions should exist simultaneously. तभी ये फंक्शन, this function will exist only if these two conditions are met simultaneously. Means एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, और log बेस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 और 1 के बीच भी होना चाहिए, तभी जाके हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा फॉर दिस फंक्शन टू एग्जिस्ट. सो यहाँ पे हम
इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे. सो लेट अस रिप्रेजेंट दिस सेट्स. ये 0 हो गया, इधर की तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी. सेकेंड सेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम 2 2 -1, this 2 and this -1. Just a minute, let us erase this and write it clearly. So 2 2, your 2 2 -1, 2 and -1 both included, and 1 2 2. So we can clearly see इंटरसेक्शन क्या है. इंटरसेक्शन जब करेंगे तो x will belong to -2 से -1 यूनियन 1 से 2, क्योंकि इतने इंटरवल के लिए ही दोनों ही सेट्स में एलिमेंट्स हैं, इसलिए x will belong to -2 to 1 and union 1 से 2. So this is the intersection of these two sets. So this will be your final answer, for which the function sine inverse log of x square by 2 exists. So the domain of this function is -2 to -1 union 1 to 2. So we will do more questions based on domain of the function. We will have special classes for solving problems only. So for time being, it's enough to have a knack of what actually domain is, and I would request you all to subscribe the channel and share the video. This will give me more inspiration to make more such videos and help you make function quite easy. So thank you.